اور جب تم روزہ رکھو، ہاللیلویا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، کچھ دن پہلے ہی ایک انڈیا سے میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سال جب ایسٹر آتا ہے تو اس سے پہلے روزے رکھے جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے روزے، یہ جو 40 دن کا روزے ہم رکھتے ہیں یہ کہاں پر واقع ہے؟ دیکھیں، روزوں کے بارے میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ 40 دن کے روزے ہم نے رکھنے ہیں، لیکن اگرچہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنا، تم نے اب مجھے فالو کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، ہاللیلویا، اور اس نے کہا کہ میری یادگیری میں اسی طرح کیا کرنا۔ تو جو ہمارے مسیحی رہنما ہے، جو عہدیداران ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسیحی قوم کے لیے ایک شیڈول بنائیں گے، اور یہ جو 40 روزے آتے ہیں یہ شیڈول کے متحد ہم تک پہنچے ہیں۔ بائبل میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو وہ اس لیے شیڈول بنایا گیا کیونکہ لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے، روزے بھی نہیں رکھتے، تو اسی سبب سے چلو وہ روزے بھی رکھیں گے، دعائیں بھی کریں گے تو وہ خداوند کے نزدیک پہنچیں گے، ہاللیلویا۔ تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہاں پر لکھی ہوئی، اور جب تم روزہ رکھو، ہم پر روزہ مقرر نہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا بائبل میں سے کہ ہم نے ایسٹر میں روزے رکھنے ہیں، ہم جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو زیادہ بائبل پڑھ چکے ہیں، یہ زیادہ مسیحیت میں آگے بڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، اب ہمیں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو، یہاں پر لفظ یہ نہیں یوز ہوا کہ اگر تم روزہ رکھو۔ اگر کا مطلب ہوتا ہے میری مرضی، بھئی اگر تیری مرضی ہے تو کر لے، نہیں تو چھوڑ دے۔ لیکن لکھا گیا ہے جب کا مطلب ہے کہ لازمی ہے، لازمی سے مراد کہ تم مقرر نہیں ہو، جب مرضی سال میں رکھ سکتے ہو، ہاللیلویا، کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ پہلے ہم نے یہ دو باتیں سیکھی، آگے ہم دیکھیں گے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو بگاڑتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں ان کے سامنے نہیں جاتے، کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگرچہ ہم لوکا رسول کی انجیل کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے 18ویں باب میں، یہاں پر ایک تمثیل دی گئی ہے، خدا یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں، 9 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں 18ویں باب کی، تو لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا مسئول لینے والا۔ فریسی کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا ہوں۔ لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، ہاللیلویا۔ یہ تمثیل ہمیں سارا واقعہ اور ساری حالات بتا دیتی ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا کلام ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چلتی پھرتی سفید کپڑے، جو لمبے لمبے چوگے پہنتے ہیں، اعلیٰ درجہ کی وہ کرسیوں کو چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھیں، اچھی پوشاکیں پہنیں، اور ہم لوگوں کو دکھاوا پریزنٹ کریں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم آپ کے رہنما ہیں۔ لیکن خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ وہ شخص جو چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے کہ اے خداوند، مجھ گناہگار پر
रहम कर, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि कोई नेक नहीं बल्कि एक भी नहीं। हालेलुया। दुनिया पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो नेक नहीं, खुदा का कलाम इस बात को फरमाता है। और अगर चाहे कोई ये दिखावे कि मैं नेक हूँ, मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं, मेरी कुर्सियाँ आला दर्जे की है, मेरा घर बार आला दर्जे का है, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि उसकी निस्बत वो जो गली चौकों के अंदर गुनाहगार है वो रास्तबाज ठहर जाएंगे। तो हमारी मेहनत सारी रायगा जाएगी। हमें चाहिए कि जब हम रोज़ा रखें, जब हम खुदावन की दाई की दें। मैं ये चीज़ भी बहुत नोटिस करता हूँ कि हमारे चर्च में तो है ऐसा शेड्यूल नहीं। जो बड़े चर्चिज़ हैं तो बड़े चर्चिज़ के अंदर गले लगे हुए हैं, हदीये का लहदा है, शुक्रगुजारी का लहदा है, दाई की का लहदा है, उन्होंने रखे हुए गले जहाँ पे आपने पैसे डालने हैं यहाँ पर डाल दें। एक शेड्यूल जब बना दिया गया है तो आपका काम बनता है उसमें जाकर दे दे। आप खुदा को दे रहे हैं ना किसी इंसान को दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान जो है वो उसके जहन जो है वो अपनी मर्जी से ही काम करता है, उसकी तसल्ली नहीं होती। वो तसल्ली कैसे करता है? अगर जो उसने पूरे महीने की दहाई की देनी है तो वो जाके पास्टर के हाथ में देगा कि पास्टर साहब ये मेरी दहाई की है, इस पर दुआ भी कर दे और आपको पता भी चल जाए कि मैंने दहाई की दे दी है। गले में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं आपके हाथ में दूंगा या दूंगी तो आपको पता चलेगा और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखें कि गले में देने से खुदा आपको देख रहा है और पादरी से बड़ा खुदा है। हालेलुया। पादरी मुकर्रर करने वाला खुदा है और सारा निज़ाम बनाने वाला खुदा है। और बेहतर ये है कि आप गले में डालें। अगर चाहे जो निज़ाम है आपने खुदा को खादम को दे दिया है वो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब एक निज़ाम बनाया गया है तो आप उसके मुताबिक चले और खुदा को प्रेजेंट करें, खुदा को दे, ना कि खुदा के खादम को। वो जब उस दाई को निकालेंगे पूरे महीने के बाद तो ये ज़रूर है, उन्होंने ये भी शेड्यूल ज़रूर बनाया होगा कि उस सारी दाई पर वो दुआ करेंगे और उसके पीछे जिन फैमिलियों ने दिया है उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके मकासद के लिए भी दुआ करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो काम हम करें वो दिखावे के तौर पर ना करें, अपने आप को बड़ा ना करें, अपने आप को रियाकारों की तरह ना करें, ताकि हमारी सारी मेहनत कहीं ज़ाया ना हो जाए। मैं आपको एक और तमसील बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब खुदावंद ने यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों में बहस होती है कि बड़ा कौन है, लूका की अंजील उसके जब हम 22 बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28वीं आयत में लिखा हुआ है, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अगर चाह तुम में से जो कोई बड़ा होना, वहां पर खुदावन यीशु मसीह ने अपने कमर पर फटका बांधा, रुमाल बांधा और उनके पांव धोने लगा और उनसे कहा कि मैं तुम में से सबसे छोटा हूं। अगर तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा करे, जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो एक दूसरे की खिदमत करे, ताकि तुम मेरी आजमाइशों में मेरे साथ बराबर ठहरे हो। और एक बादशाही खुदावंद ने मेरे लिए मुकर्रर की है और मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ। अगर चाहे आप रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी दाई की देते हैं, हदिया देते हैं, शुक्रगुजारियां देते हैं, तो वो दिखावा करके आप देते हैं, तो फिर वो बादशाही आपके लिए मुकर्रर नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं। वो बादशाही उन लोगों के लिए है जिनके लिए खुदा उनका कलाम फरमाता है, बल्कि तू अपनी कोठरी में जा और वहां जाकर अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल और अपने आसमानी बाप से दुआ कर। हालेलुया। जो पशीदगी में है, जो तुझे अजर देना, तुझे बदला देने की कुदरत रखता है। हमें पशीदगी में हर एक काम करने की जरूरत है। हालेलुया। और रोजे के बारे में हम सीख रहे हैं, तो रोजे के वसीला से इंसान जो है वो खुदा के नजदीक जाता है। हमने पहले बातें सीखी कि रोजा जो है, रोजे का क्या मतलब है, फाका करना, अपनी जान को दुख देना,
और उसके बाद जब तुम रोज़ा रखो, हम पूरे साल में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं, किसी महीना में किसी दिन में हम रोज़ा रख सकते हैं, और बाइबल में इस चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं है, ये भी बात याद रखें। और फिर हमने रियाकारों की तरह काम नहीं करना जो दिखावे को प्रेजेंट करते हैं। 3 और आगे हम सीखेंगे कि रोज़े के वसीला से जो इंसान है जब रोज़ा रखता है तो वो खुदा के नज़दीक जाता है। कैसे? जब यूना नबी को भेजा गया नैनवा में कि उनको जाके बता कि नैनवा बर्बाद होने वाला है, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने रोज़ा रखा और क्या किया? टाट ओढ़ा। और उस रोज़ा रखने के वसीला से, टाट ओढ़ने के वसीला से वो खुदावन के नज़दीक चले गए। हालेलुया। और खुदावन के नज़दीक जब कोई जाता है तो फिर खुदावन को उन पे तरस आता है, रहम आता है, उनके लिए मोहब्बत जारी होती है, रहम जारी होता है, फजल जारी होता है, और खुदावन ने उनकी हलाकत से उनको रिहाई दी। हालेलुया। मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ, ये वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा कि जब खुदावन यीशु मसीह नासरी पहाड़ पर जाते हैं दुआ करने के लिए, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एलिया और मूसा खुदावन यीशु मसीह नासरी को तकवीत देने के लिए आते हैं और खुदावन यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है। हालेलुया। किस किस ने ये वाक़या सुना है, पढ़ा है, ये सुना है? तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्यों एलिया और मूसा जो है खुदावन यीशु मसीह को तकवीत देने आते हैं? कभी आपने इस बात पर गौर फिक्र किया है कि जब खुदावन यीशु मसीह नासरी पहाड़ पर जाते हैं, दुआ करते हैं, और एलिया और मूसा खुदावन यीशु मसीह को तकवीत देने के लिए आते हैं, और उसके बाद का वाक़या जब हम देखते हैं तो इस सारे मंजर का जो खलासा है वो खुल के हमारे सामने आ जाता है कि खुदावन यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते हैं और वहाँ पर एक बाप खुदावन यीशु मसीह नासरी से मिन्नत करता है कि ऐ यीशु नासरी, ऐ इब्ने दाऊद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरे बेटे पर रहम कर, उसको शिफा दे। उसके अंदर एक बदरू थी जो मिर्गी का दौरा उसको पड़ता था, तो उसने कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर आया था लेकिन वो उसे ठीक ना कर सके। तो जो उसका बेटा था उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ता था तो उसके पीछे एक जुआ था, एक शराब था जो उसको कभी आग में डाल देती थी और कभी पानी में डाल देती थी और उसको हलाक करने की कोशिश करती थी। उसके पीछे एक जुआ चल रहा था उसके बेटे के अंदर। तो उसी मुआजिज़े को करने के लिए एलिया, जिसको पानी वाला नबी भी कहा जाता है, जो उड़ता था बादलों में, पानियों के 2 भाग करता था, और मूसा जिसको आग वाला नबी भी कहा जाता है, जो खुदा यीशु मसीह के सामने जलती हुई झाड़ी में बैठकर बातें करता था, और वो दोनों तकवीत देने के लिए आए ताकि वो उस जुए को तोड़ सके। हालेलुया। क्योंकि वो पहले शागिर्दों के पास गए और शागिर्द उसको शिफा ना दे सके, और जब आप आगे वाक़या पढ़ते हैं तो शागिर्द खुदा यीशु मसीह नासरी से कहते हैं कि हम उसको क्यों ना निकाल सके। तो खुदा यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि बदरूहों की कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो दुआओं और रोज़ों के वसीला के बगैर नहीं निकल सकती। हालेलुया। रोज़ा रखने से हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम दुआओं के वसीला से, रोज़ों के वसीला से ऐसे काम कर सकते हैं जो हम सिविलियन तौर पर खाली रहकर नहीं कर सकते। जिस तरह खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा कि कुछ बदरूहों की कैटेगरीज हैं, जैसे एक हवलदार है, फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर SHO है, फिर DG है, DP है, ऐसे ओहदेदारान है, ऐसे बदरूहों की भी कैटेगरीज हैं जो ऊंचे लेवल की होगी, वो जितनी हमारी मेहनत होगी उस मेहनत से वो नहीं जाएंगी। हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुआएं और रोज़ा रखें। हालेलुया। तो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने किस तरह रोज़े रखने हैं और रोज़ों के वसीला से हम कैसे बड़े बड़े काम करने की कुदरत खुदा रखता है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा